I have already discussed for loop, and loop is for repeating something, same process again and again. But I told you last time there are three types of for loop. One is for, this we have seen in many programs. Second is while. Third is do while. Okay. So today I will take the second or maybe the third one. Hello. Who's this? So using while loop. In for what you have seen, just I'm writing for, you have three statements. One statement is called initialization. Initialization, just right. Initialization. Then you have test condition. Test condition. And third, what you have is update. Update. Okay, that is update value, I'll say rather. So this is your syntax for loop. You have to have some initialization value, that start value. How long this will continue, it has to be tested, and with what update, whether you want to go with increment or decrement. Okay, like for an example, suppose you want to print the 10 values 1 to 10. How will you write this? Initialization start from 1, it will go up to 10 with an increment of 1. So this is what I said. Initialization first one, second is test, and third is update. Same thing if I want it in while, then initialization will happen outside. I will say I is equal to 1, and I'll write while I is less or is equal to 10, and then I can write y, I plus plus. Same thing can be written like this. Whatever you have written in for, in while, we could write like this. Okay, so that means inside while you just do the test condition, you just test it. Initialization happens in the beginning, and update happens in the loop, in the while loop. But whereas in for loop, you write everything together. Is that clear, students? Now, sir, what is the difference between for and while? How many times are we executing this? So that time we have to make use of while loop. Like if you could remember your program sum of digits, okay, that we have written using goto. Today we write the same loop. The reverse of program, reverse of digits can be written in while loop. How will you write that? So for that very first line, you will write void main. Next, what you'll do? Integer, you require a number. I'll be finding out the remainder. And this program you have written using goto. So then I'll go ahead with the clear screen. Printf. I'll enter an integer. And scanf. I'll ask for the integer. I got the integer now. Now I do not know whether in this integer there are 3 digits are entered, 4 are entered, 5 are entered. We don't have any idea. Okay, so how many remainders you'll be getting, you don't know well in advance. So we cannot use for loop here. Okay, we'll have to make use of while loop. So I will check, is this number is 0? If it is not 0, then if it is not 0, while it is not 0, while, okay, I'll go ahead with the number %10, and this remainder I will add it with sum, and then the number I'll reduce by 10, and that's all. And I'll print f sum of digits equal to %d comma sum. Maybe if you want, you can write get ch. Let us take the number, students.
Suppose user has entered 4, 5, 6, 7, right? This is my number. Hello? Am I audible? 4, 5, 6, 7. Purva is 4, 5, 6, 7 is 0. It is going to be checked here inside while loop. Is 4, 5, 6, 7 is 0. Answer? No, sir. No. Where is Purva? Purva, are you there? Yes, sir. So you should reply. Once I took your name, once I said Purva, you have to answer this, you have to answer. Actually, sir, today your network is not stable. Actually, light is going and coming. Like that's why my mic is also not working. Chalo, whoever can answer in this class, whoever feel that I can answer this. So 4, 5, 6, 7 is not 0. Then my next line will happen. What is the remainder? 4, 5, 6, 7%, 10. 7. 7. 7. 7. And my initial sum is 0. As you all can see, my initial sum is 0. So 0 plus 7, my current sum will be 7. Is that clear? Yes. My number will be, third line में मेरा number क्या हो जाएगा? 456. 456. It is again checking. Is that while में फिर से जाएगा? It will go back here. Okay? While. Is 4, 5, 6 is 0? No, sir. It is not 0. What is the remainder? What is the remainder then? 6. 6. What was your previous sum? Just now you left out. 7. 7 plus Seven. 6. 7 plus 6. 13. My new summation will be 13. New summation will be 13. What will be your new number? 45. Again it will go back. Again it will go here and check is 45 0. No, sir. No. So what is the remainder then? 5. 5. What 5? What is your previous sum? 13. 13 plus 5. 18. 18. 18. What will be your new number? 4. 4. Is 4 is 0? No. What is the remainder then? 4. What is your previous sum? 18. 18 plus 4. 22. 22. What is your new number? 0. 22. 0. New number. 4 upon 10. 0. 0. So is the Zero. number 0 now? Yes, sir. Yes. So then it will not enter into the loop. So how many times this will do the same process? It depends on how many digits you have entered. If you have entered 2-digit number, it will just do it 2 times. If you have entered 8-digit number, 10-digit number, you will. So we do not know well in advance how many times this is going to be executed, right? Getting my point? Yes, sir. Because while number is not 0, then it is going to be executed. So how many digits are there in that number? We don't know whether the 3 digits are there, 4 digits are there, 5 digits are there. Because I'm not asking anything. I'm asking the user, give me the number. Whether user is giving me 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit. So that many times this particular process is going to be executed. Is that clear, students? Yes, sir. Yes. Sir, hello. Yes. Sir, this sum can be done in 3 ways, sir. So, sir, in exam they will tell us that which way they wanted, sir. If Or nothing we is, can do any. if the as I told you, if nothing is clearly specified, then you decide. But if the teacher writes using goto, then you have to use only goto. You cannot write the same program using while. Okay, sir. Because we have written using goto. Today I wrote the same thing using while also. Okay. So while, when to use while then, students? When to use while? When we do not know how many times the loop is to be executed, then we use while. For में क्या होता है? We know well in advance how many times we'll be doing this, right? Getting my point? Students, you know starting condition, you know ending condition, इसको कितनी बार करना है? That is your for. But how many times? If I do not know, then we have to make use of our while loop. Let us write the program, whatever I have written just now. Hello.
Am I audible, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So whatever you have seen just now, just have a look. I'm writing the same thing. Integer number, comma r, comma sum is 0. Can you leave sum as it is? No, sir. We cannot leave, right? Otherwise, it will take garbage value. मतलब वेरिएबल का केयर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो it will take garbage value, whole answer will go wrong. So can your parents leave you as it is? They should not do any care for you. नहीं केयर करेंगे बच्चे बिगड़ जाएंगे, राइट? Yes, sir. करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, sir. करना चाहिए. और when they do their job, you become angry, right? You teach them, right? Carefully. Yes, sir. I know that what parents, when they meet and when we have a parents meeting, they tell everything what happens in their home. So their child doesn't listen to them. Chalo, let us come back to r is equal to n percent 10. And then what we have written, sum is equal to sum plus r. And then we wrote n is equal to n by 10. And then close this printf sum of digits is equal to percent d comma sum. Get ch and close this. So let us save this program. What should be the file name? I can write sum while से किया मैंने, while sum while, and compile this, run this. Just now we checked for 4, 5, 6, 7. Are we getting the answer, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now in the same program as we have seen, we can also go for reverse of digit. Reverse of digit. एक के साथ दूसरा free, that we did in GoTo also. Long integer, but long integer reverse. So I'll write here reverse is equal to reverse into 10 plus r. My reverse is also done for the same program. So sum of digits is equal to, and printf reverse of digits is equal to reverse. Enter the number 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. क्रॉस कर गया. लिमिट क्रॉस नहीं किया. बताइए क्या एरर हुआ? एनीबडी कैन टेल मी दिस? 12,345 is not crossing the limit. क्या प्रॉब्लम हुआ? एनीबडी कैन टेल मी? No one, right? लिमिट क्रॉस नहीं हुआ, आपने उसको गलत फॉर्मेट दिया है, परसेंट डी दिया है आपने. क्या देना चाहिए था? एलडी देना. हाँ, मिस्टेक्स भी तुम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते हो, क्या प्रॉब्लम हुआ? अगेन नाउ आई विल एंटर 1, 2, 3, 4, 5. Just check, is it correct now? Yes, sir. So these things, smaller minor mistakes, you should be able to figure out. It was not crossing the limit. Okay, so that's the reason I've declared this. One thing, students, you should know, always make a highlighted point that for loop can be replaced by while loop. For loop, that means while can replace for. While can replace for. Whichever program you have written using for loop, you can write them in while loop. But while loop cannot be replaced by for loop. If somebody will ask you the difference, what is the difference? First of all,
first difference you'll be saying, sir, when we know well in advance, like how many times the certain set of statements is to be executed, we will make use of for loop. But when we do not know, we'll go for while loop. Next, we can say for, it has got three statements. One is your initialization, test condition, and the update. Whereas while you have only one, that is the testing condition. In initialization, you have to do it outside, and the update will happen inside the loop. Okay. Only condition we check every time in while, but in for may you are writing three statements. Okay. Next, you can write that the for can be replaced by while, but the while cannot be replaced by for. Right, students? Can you write the same program, whatever I'm writing in this while, sum of digits in for loop? No, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि सर इसमें 4 डिजिट आएगा तो फॉर तो उतना ही चलता है जितना बोलते हैं, या 5 डिजिट हो जाएगा. राइट स्टूडेंट्स? हेलो? Yes, sir. यस, फॉर Yes, उतने ही sir. और इतने ही स्टेप चलता है जितना स्टेप हम उसको बोलते हैं. आपको 5 स्टेप चलना है, 10 स्टेप चलना है, उतना बंद हो जाओ उसके बाद. और वाइल में हमने बोला नहीं नहीं, जब तक 0 नहीं होगा तब तक चलते रहो. 10 डिजिट आएगा तो 10 बार वो काम करो आप. 8 डिजिट आएगा तो 8 टाइम आप ये दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स यू हैव टू एग्जीक्यूट. और 2 डिजिट आएगा तो केवल 2 बार करो. सो वी डू नॉट नो हाउ मेनी डिजिट्स यूजर इज गोइंग टू एंटर, राइट? वी आवरसेल्फ डोंट नो. सो हाउ कैन यू टेल दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट सो मेनी टाइम्स? तो जब आपको खुद को पता नहीं है तो आप कैसे बोलोगे कि आपको इतने स्टेप चलना है? और फॉर में क्या रहता है? वी नो हाउ मेनी टाइम्स आई विल बी डूइंग दिस, right? So you can go ahead with the for loop. Is it clear, students? Yes, sir. Yes. Chalo, I'll take one program where I will be removing the zeros from a given number. I'll be removing the zeros from the given number. Program थोड़ा बड़ा होगा. मतलब zeros from the given number मतलब क्या हो रहा है? Suppose I will give the number 10203. I want you to print 1, 2, 3. जहां 0 होगा उसको हटा दो, जो बचा हुआ नंबर है उसको लिखो. राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे इसको सर? ये तो थोड़ा आपने डिफिकल्ट बोल दिया है कि 0 कैसे जाएंगे. आपके पास जब नंबर आएगा स्टूडेंट्स 102, NOC पेपर मांगेला पेरेंट्स का. नो ऑब्जेक्शन. वो लोगों ने फॉर्म दिला है, उसको साइन करके दे. हाँ नहीं, ऑनलाइन दे रहा है, उसका प्रिंट आउट करने का देने. समझा? बाद में किसको स्कूल में से कोविड निकला तो पेरेंट्स लोग नहीं कर सकते, कंप्लेंट नहीं कर सकते.
Hello, students. Yes, sir. Hello, Yes, sir. am I audible Yes, now? sir. Yes, sir. So Yes. there is no lag in my voice, right? No, sir. Okay. What I was telling you, my question was, like, given a number and you have to remove the zeros from that digit. So first step, I told you step 1 that you should reverse the number. रिवर्स का आपको सबको मैंने दिखाया हुआ रिवर्स का स्टेप कैसा होता है, फिर से मैं बता देता हूँ. सपोज आ लिया, r इज इक्वल टू, इज माई स्क्रीन इज विजिबल? यस Yes, नो? sir. तो फिर से मैं वो स्टेप लिख दे रहा हूँ सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड. देयर इज नो प्रॉब्लम. आई एम राइटिंग मे बी 10203. इसका रिमाइंडर होगा 3. ये होगा 0 इंटू 10 प्लस 3 इज 3. ये हो जाएगा 1020. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस नो? तो ये 1020 होगा, इसका रिमाइंडर होगा 0. ये हो जाएगा रिवर्स इज 3 इंटू 10 प्लस 0. ये हो जाएगा 30. राइट? हेलो. Yes, sir. Yes, नेक्स्ट sir. इज 102. ये होगा 102. ये हो जाएगा 2. ये हो जाएगा 30 इंटू 10 प्लस 2, दैट इज 302. और ये हो जाएगा 10. राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. So this is going to be 10. This will be 0. This will be 302 into 10 plus 0 is 302. Sorry, 3020. And this will be 1. Is that clear? Yes, sir. Now this is going to be 1. This is going to be 1. So this is 3020 into 10 plus 1. So this is 30201. This will be 0. So this is the way you'll get your reverse. Right? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. So I will be writing these 3 statements inside the while loop so that you can get your reverse. That is r is equal to number percent 10. Then I'll keep that remainder with reverse and then keep on reducing the number. Second, I got the reverse now, just now. My reverse number is 30201. What will I do here? I want the number. I want the number. Okay. So I want the new number. Maybe number चाहिए. मुझे number क्या चाहिए? 123 चाहिए. 123 चाहिए. ठीक है? So number is equal to number into 10 plus r. Right now my number is 0. Number is equal to number into 10 plus r. Reverse is equal to, sorry, not reverse. अभी जो मेरा number है 30 है. So this will be number is equal to number by 10. But एक condition होएगा, इसका हम करेंगे, that I'll tell you. Right now number is this. What is the remainder here? 1. And then 0 into 10 plus 1. What is your number? 1. Is that clear? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Then this will be 3020. Is that clear? 3020 होगा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बाकी पता नहीं बच्चे, they don't know, they don't have brains or what, they talk only, right? But I'm going to take a very serious action on this. Okay, when I'll start asking the questions, when I'll take you in the video, if you're not able to answer anything, then I don't know, I mean, how many KT you'll get in my subject, internal KT, external KT, practical KT, because interaction will give you the marks. Next is, this number is 3020, remainder is 0. So I will be executing this step. Which step? Highlighted step, I'll tell you. This step will be executed. This step will be executed. Highlighted, जो मैंने highlight किया है,
if the remainder is not 0, if it is 0, then please not to do anything. कुछ मत करो, ऐसे ही छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि 0 वाला रिमाइंडर मुझे नहीं चाहिए. Students, right? My program here is to remove 0. तो मैं I should not give any respect to 0. जो मुझे 0 0 रास्ते में मिलेंगे उनको मैं सबको छोड़ दूंगा. बाबा जाओ तुम लोग, leave me. So when 0 remainder I got, I'm not doing this step. Then I'll check what is the number now. Number is 302. So this is 302. Now the remainder will be 2. Is this remainder is 0? Is 2 is 0? No. No. Then what was your previous number? Previous number was 1 into 10 plus 2. What is your number now? 12. 12. 12. What will be your number now? 30, right? 30. Yes, sir. 30. What is the remainder now? 30 का Zero. remainder? 0. 0. 0. I'm getting repeat. हाँ बोले इसको छोड़ दो, जाने दो. 0 को तो नहीं लेना है ना सर. 0 को छोड़ दो, छोड़ दिया, जाने दो. Now what is my number? Number is 3. Number is 3. Remainder is 3, which is non-zero. तो non-zero है तो बोले उसको पकड़ो. So 12 into 10 plus 3. What we got? 123, right? Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, now sir. my number has become 0, right? Yes, sir. तो ये जो पूरा प्रोग्राम है रिमूविंग 0, इट इज अ डबल स्टेप प्रोग्राम. हाउ कम इट इज डबल स्टेप सर? क्योंकि पहले आपने क्या किया, उसको रिवर्स में कन्वर्ट किया. आपका ये स्टेप है पूरा. सेकेंड स्टेप में जो रिवर्स आएगा उसको फिर से हम काइंड ऑफ रिवर्स कर रहे हैं, बट आई एम गोइंग टू रिमूव द व्हाट यू कैन से दैट जीरोस फ्रॉम देयर, राइट? अगर सर पहले स्टेप में ही आप जरा माइंड लगाओ, अगर मैंने नंबर आपको दिया होता था 10203, राइट? और इसमें ही अगर 0 रिमूवल करते थे तो पहले आपको रिमाइंडर आता था 3, बाद में हो जाता था 32, बाद में हो जाता 321 आता था, राइट? आंसर में स्टूडेंट्स, हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. So Yes. actually I wanted 10, I wanted answer 1 2 3. That's the reason first मैंने रिवर्स किया. अब रिवर्स में जब एक एक डिजिट उठाएंगे तो पहले मेरा 1 आ जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर पहले 1 आएगा, फिर 12 होएगा, फिर 1 2 3 हो जाएगा. That's the reason this is there in 2 steps. So let me write down the whole program now once again for you all. Okay? यहाँ कैसे चिपके जाओ देखो. Program. I'm writing the program save as remove 0. remove 0 इतना तो नहीं होएगा, बड़ा नाम. remove 0 dot c. Now first and foremost thing when I'm removing 0, मुझे सम का कुछ जरूरत नहीं. मैं एक नंबर ले लेता हूँ. नंबर बाद में नया नंबर बनाएंगे और आई मे कॉल इट एज न्यू नंबर. ओके, न्यू नंबर बाद में बनेगा मेरा. एंड आई वांटेड टू first before I'll get the new number, that is 1 2 3, I have to convert this into what you can say the reverse में करना पड़ेगा. तो ये मेरा प्रोग्राम यहाँ पे इसको रिवर्स में कर देगा. इज दैट क्लियर? यहाँ से रिवर्स मुझे मिलेगा और रिवर्स मिलने के बाद में आई गॉट द रिवर्स नाउ. वो रिवर्स को फिर से मुझे लूप में लगाना पड़ेगा. ओके, एंड रिवर्स में जो 0 मिलेंगे उनको मुझे हटाना है. जस्ट हैव अ लुक हियर. अब मुझे लूप किसके ऊपर लगाना पड़ेगा सर? रिवर्स के ऊपर लगाना पड़ेगा. रिवर्स, while reverse is not 0, reverse is not 0, r is equal to reverse %10. And then very important, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो, रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो आप इसको मल्टीप्लाई करना. इफ द रिमाइंडर इज नॉट 0, if the remainder is not 0, then what is to be done? Then I'll write new number, new num will be new number
into 10 plus r. When this has to be added along with the new number if it is not 0. But if it is It 0, is not हाँ 0 not है तो valid. कुछ, हाँ 0 है तो कुछ नहीं करेगा, नंबर को जाके फिर से रिड्यूस करेगा, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स बाय 10 हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? व्हाट आई जस्ट चेक, मैंने क्या किया है, रिमाइंडर निकाला, इज इट 0? If it is 0, then you do reverse is equal to reverse by 10. But if it is not 0, then you do this. Okay. So let me display my answer, that is new number after removing 0. New number is new num, and let us save this program, compile, run. Check now. 10203. What we got, students? 1 2 3 Correct. 1 2 3. Now you try out anything, sir. ये दूसरा कुछ करो जरा. I'm entering 1 0 0 0 2. क्या मिलना चाहिए? 12 12 को मिल रहा है? 1 2 हाँ, Yes. मिला 12. Yes. तो अगर मैं ऐसे तुम लोग को हवा में प्रोग्राम दे दूं, बाबा ये करो, तो ये चीज ऐसी है ना स्टूडेंट्स, मैथ्स के तुम्हारे पास बैकग्राउंड है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे भी हो जाएगा, लेकिन ये चीज, ये सब्जेक्ट है ना, कैसे भी नहीं होता है, आपका खुद का ब्रेन चलना चाहिए. अ टीचर कैन टीच यू द कॉन्सेप्ट, फॉर लूप कैसे होता है, व्हाइल लूप कहाँ पे यूज करते हैं, बट नो टीचर कैन गिव यू द ब्रेन, कैन गिव यू द लॉजिक कि व्हाइल लूप कब यूज करना है सर, व्हेन यू डू नॉट नो, और कब यूज करना है व्हेन वी नो. Can while replace for? Yes. Can for replace while? No. Right? All such different permutation combination teacher can give you. But when it comes to the application, I'll give you the program. Can you write the? Then, sir, you should be able to, work out. Then, very, very simple program I will take today, because now let's look at the next program, what I'll be doing for you. Next program. There is a for loop or while loop. I'll go ahead with the for, and something called as nested for. Nested for loop. Whatever we have seen, this one for loop at a time. There can be 2 for loop at a time. There can be 3 for loop at a time. There can be 4 for loop at a time. So nested means one inside the other. जैसे कि अगर मान लो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि मुझे प्रिंट करना है मे बी 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 like this. I wanted to display this kind of triangle on my screen. How do you display this? Students, hello? Hello? Yes, sir. तो मतलब ये ऐसी बात हो गई है, या तो ऐसा नहीं रखना है, तो आपको अगर ऐसा भी करना है तो भी कर लो, तो भी चलेगा फॉर टाइम बीइंग. मुझे ऐसा कुछ डिस्प्ले करना जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, मुझे ये करना है, मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 बार 10 बार मुझे डिस्प्ले करना है. कैसे होगा सर? इसमें एक फॉर लूप दिखाई दे रहा है कि 2 बार दिखाई दे रहा है? सर एक फॉर लूप तो ये आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि पहला लाइन जब लोगे, पहला लाइन ये वाला, तो दिस इज वन फॉर लूप, राइट स्टूडेंट्स? yes sir दिस इज वन फॉर लूप कि आपने फॉर लूप लगाया, 1 to 5 डिस्प्ले कर दिया, बट इज द प्रोग्राम इज ओवर? नो सर, नहीं, ऐसा नहीं है सर, फिर से मुझे वही करना है, सेकेंड लाइन में भी वही करना है, थर्ड में भी वही करना है, फोर्थ में भी वही करना है, एंड सो ऑन. So how many times you'll be doing this? How many times are you going to repeat this highlighted process? Students, hello? 5 times. 5 times. मतलब क्या हो रहा है कि ये कैसा स्टोरी बन रहा है कि एक लूप के अंदर लूप है, एक लूप चला और उसने हाईलाइटेड वाले को डिस्प्ले कर दिया,
ये हाईलाइटेड पोर्शन जो है ना 1 2 3 4 5 डिस्प्ले कर दिया. बोलते हैं सर मैं जाऊं, माय जॉब इज ओवर, आई हैव डिस्प्लेड 1 2 4 5. बोले चुप, लेट मी सी वेदर यू हैव डन योर जॉब. Then when other loop will see that it has to be repeated 5 times. Like suppose the teacher will give the assignment and teacher will give maybe the 5 assignments and each assignment has got 5 questions. So after you are when you are taking the first assignment, you took 5 questions. Is my all assignments are over? No, not it. Then you'll take up the second assignment. You again solve 5 questions. Then, like this is my assignment 1, 5 questions. A, B, C, D, E. Second assignment, A, B, C, D, E. Third assignment, fourth assignment. So how this system runs? I require 2 for loop यहाँ पे. एक ऐसा चलेगा for I is equal to 1, I is less or is equal to 5, I plus plus. So this outer for loop, ये जो रहेगा ये कैसा मूव होएगा? Top to bottom, row wise. ये मेरा I है, top to bottom. Okay, and there is one more for loop running here. There is one more for loop running here, which will be going from left to right, left to right. This is your J. I will write here for J is equal to 1, J is less or is equal to 5, J plus plus. Right? तो ये क्या होएगा जब आपका I is 1, I is looking after row, J is looking after column. Okay, that means when I is 1, J will take how many values? मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करके दिखाऊं, printf %d थोड़ा स्पेस कॉमा J, राइट? जरा देखना ये प्रोग्राम कैसा चलेगा. printf, ध्यान दो स्टूडेंट्स, अभी बहुत अच्छे से ध्यान देना. जब आपका I जब 1 है, I 1 है, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, इधर जंप करेगा. J कितना हो जाएगा? J कितना हो जाएगा? हेलो हेलो 2. J Not कैसे? getting. हेलो स्टूडेंट्स, 2. Yes, sir. जब आप अपना पहला असाइनमेंट उठाओगे तो पहला क्वेश्चन मिलेगा कि दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा सडनली? तो पहला. हाँ, तो जब मैंने पहला असाइनमेंट लिया है, व्हेन I is 1, असाइनमेंट नंबर 1, सो J is 1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट? Yes. Yes. सो देन फर्स्ट आप जिससे मान लो सिंपल एग्जांपल, अगर आपको 5 असाइनमेंट पूरे करने हैं, हर एक असाइनमेंट में आपके 5 क्वेश्चन है, तो आप पहले असाइनमेंट नंबर 1, that is I is 1, question number 1, that means within that assignment first question I'm going to solve. Then will you move on to the second assignment or the second question of the first assignment? Where will you move first? Second question. Second question of the first assignment. So what will change next? That means, see, look at this. I is talking about the assignment, J is talking about the questions. You try to take in the real life. I is assignment, J is question. So I is assignment, we are in assignment number 1, J is 1, question number 1. When question number 1 is done, will you change assignment or question? Question. So then what will increase? I will increase or J will increase? J will J. increase. J will become 2. Is all the questions of assignment 1 is over or is something is remaining? 3 question remaining. हाँ, तो you will have to complete all 3, right? Yes. Right, students? So this is what was happening यहाँ पे. ये जो मैंने फिर से बॉक्स बनाया, ये J 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया. Is all the questions of assignment number 1 is over? Yes. Then it says, ये बोलता है आप नया लाइन में जाओ, यहाँ पे जंप कर देगा यहाँ पे, और ये नया लाइन क्या करेगा, इसको बोलेगा इधर आओ. Is all assignments are over? Is all assignments are over? I was what? What was your I? ये वाला क्या था? Assignment, right? 1. How many assignments you have completed till now? 1. How 1. many you have completed? 1. 1. So that is what I'm asking. Is all assignments are over? No, sir. No, sir. So then it will take the second assignment. Second assignment, I will become 2.
When I will become 2, J will again. Now in second assignment, from which question it should begin? Students? Question 1. Yes. So again, when I is 2, J will Take again question begin one. from 1. Okay. And it will One. solve again 5 questions of assignment 2. Yes, five. Once again assignment 2 gets over, again it move on to the third line. That means, right? Getting my point, students? मतलब पहला assignment का 1 2 3 Yes. 4 5, दूसरे का 1 2 3 4 5 हुआ. Now is all assignments are over? All assignments are done? No, sir. No. No, which sir. assignment? Five. Now which assignment? After Third. doing completing Third. third assignment. So I will be Assignment 3. three. I will be 3. I will be 3. Now when I will be 3, which question number? Question 1. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Take question. Now after completing third assignment, what will happen then? Fourth Assignment 4. I to question 4. I will be 4, but J will be how many times? J will be 1. 1 2 3 4 5 नहीं मतलब when assignment 4 है तो J का कितना वैल्यू आएगा? 5 वैल्यू आएगा, right? Yes. 5. Yes, 5. हाँ, फिर जब 4 assignment भी खत्म हो जाएगा, then which one will begin? Fifth last. I to question 5. मतलब आप सोचो कि जब आपका ये कैसा चल रहा है सर, आप जरा जब असाइनमेंट 1 था तो J की कितना वैल्यू आ रहा था? 1 2 3 4 5 आ रहा था, राइट? जब ये 2 हुआ है Yes. तो J फिर 1 2 3 4 5 हुआ है. जब ये 3 हुआ है फिर से 1 2 3 4 5 हुआ है, राइट? जब ये 4 हुआ है तो फिर से 1 2 3 4 5 हुआ है. जब ये 5 हुआ है तो फिर से 1 2 3 4 5 हुआ है, राइट? Yes. Yes, sir. So just have a look. J was moving from left to right. That is, J was talking about column, right? Yes or no? और ये Yes. तुम्हारा I तुम्हारा कैसा मूव हो रहा था? ये फर्स्ट रो, ये असाइनमेंट 1, ये असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, और ये तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ऐसा. असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन 1, असाइनमेंट 2 के क्वेश्चन, असाइनमेंट 3 के क्वेश्चन, असाइनमेंट 4 का एंड असाइनमेंट 5 का. So once I'll take something correlate with the real life, you can understand very well. Otherwise, you'll not be able to understand. So this is the place where we require two for loops. आपको समझ रहा है two for loop कभी चाहिए? और जब 2 लेते हैं तो सबसे पहला कौन सा लूप एग्जीक्यूट होता है? आउटर वाला कि इनर वाला? There are two for loop. One is I, second is J. I is your outer loop, J is your inner loop. Which loop is getting executed first? Tell me. I. I, sir. I. Outer. नहीं, I. J. पहले जब आप असाइनमेंट 1 होता है तो आप पहले किसको खत्म करते हो? 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, राइट? Yes. तो कौन सा लूप खत्म हो गया? J के पहले खत्म हो जाता है कि I पहले खत्म होता है? J. 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 I तो 1 पे ही है, असाइनमेंट 1 में है, लेकिन J खत्म हो गया. I बोलते हैं किधर जा रहा है भाई, मुझे छोड़ के, मेरा हेल्प तो कर. बोले क्या करना है, मेरा काम खत्म हो गया. कैन आई लीव नाउ? वेट, let me check whether I have completed all the assignments. Then when it checks, it founds, अरे बाबा, still assignment 2 is to be done, 3 is to be done. So then I'll take up the second assignment. और फिर J को बोलता है, my friend please, फिर से मेरा मदद कर. फिर से J क्या करता है? 1 से स्टार्ट करता है. और ये ऐसे फ्रेंड है ना, एक दूसरे को बहुत ही सेल्फिश नहीं है, सेल्फलेस हैं और अच्छा मदद करते हैं. आई जब बोलेगा J को, J is always ready. राइट? दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स. I1 है तो J 5 स्टेप चलेगा, I2 है तो फिर से J 5 स्टेप चलेगा. 5 नहीं 10 चलाओ ना तो भी चलेगा. हर एक क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन दे दो, हर एक असाइनमेंट में 10-10 क्वेश्चन दे दो तो भी J चलेगा, राइट स्टूडेंट्स? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले द इनर लूप, the one which is inside is getting executed first. When I is 1, J takes 5 steps. When I is 2, again J takes 5 steps. When I is 3, again J. So every time J is getting over, right? Is that clear, students? Yes, sir. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो हमें 2 फॉर लूप का जरूरत है, 2 फॉर लूप. और कहाँ पे 2 फॉर लूप चाहिए हमको स्टूडेंट्स? हेलो, रियल लाइफ में? हेलो, Yes, sir. आप जब एग्जाम का टाइम टेबल आएगा आपको, तो आप सिंगल फॉर लूप में पेपर दे रहे हो कि डबल फॉर लूप में पेपर दोगे?
डबल होगा सर। आज का पेपर क्या है? टुडे इज माय फर्स्ट पेपर। व्हेन यू विल सिट इन द एग्जाम हॉल, हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी राइटिंग? डबल नहीं, ट्रिपल हो जाएगा मेरे भाई, ट्रिपल। आज पेपर है पहला फॉर लूप। पेपर में गए क्वेश्चन नंबर 1, कितने क्वेश्चन है उसमें? मुझे अटेम्प्ट एनी 5। क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट एनी 5, मतलब ये जब पेपर सॉल्व हो रहा है वहां पे 2 फॉर लूप है। जब पेपर सॉल्व हो रहा था तभी 2 फॉर लूप है, एक तो क्वेश्चन और उसके सब क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। फिर सेकंड क्वेश्चन सब क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सब क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सब क्वेश्चन। बट वो तो मैं सॉल्व करके आ गया, आज का पेपर खत्म हो गया। इज माई एग्जाम इज ओवर? नो, कल फिर जाना है, कल फिर जाना है, 3 फॉर लूप चलेंगे। तो आज मैं गया, आज पेपर लिखा, 2 फॉर लूप में पेपर लिखा आज का पेपर, लेकिन एग्जाम मेरी खत्म हो गई क्या स्टूडेंट्स? नो सर। No. तो कितने कितने फॉर लूप चलाने पड़ेंगे? रियल लाइफ में इमेजिन करो आप। तो जो सबसे बाहर फॉर लूप चल रहा है वो दैट इज काउंटिंग योर नंबर ऑफ पेपर्स, हाउ मेनी पेपर्स यू हैव गिवन और हाउ मेनी पेपर्स यू हैव टू अपीयर। आई एम अपीयरिंग फॉर माई पेपर 1, आई इज 1, then j is 1 says question number 1, then k is 1 2 3 मतलब उसका सब क्वेश्चन। j का 1 मतलब क्वेश्चन 1, k 1 2 3 मतलब क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन हो गया। फिर कौन चेंज होएगा स्टूडेंट? जरा विजुलाइज करो। अगर आपके पास में 5 सब्जेक्ट्स हैं तो I will run from 1 to 5, राइट? होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स? यस सर। और फिर जे क्या करेगा? जे इज टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस। मान लो वो क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जे विल आल्सो रन फ्रॉम 1 2 3 4 5। और मान लो हर एक क्वेश्चन में 5 सब क्वेश्चन है, 3 सब क्वेश्चन है, 3 भी ले लो, तो इसको कैसे लिखोगे? ये आई इज टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्स, दिस इज टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस, एंड दिस इज योर सब क्वेश्चंस। How will you appear in your entire exam? It is 1 loop, 2 loop, 3 loop. तो देखो कैसे चल रहा है, कैसे लिखेंगे हम? For I is equal to 1, this is talking about the exams. I is 1, I is less or is equal to 5. 5 papers हैं हमारे पास में। I went inside the exam hall. I found out 5 questions. Day 1, फर्स्ट पेपर के दिन में मुझे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। J is 1, J is less or is equal to 5. J is less or is equal to 5 and J plus plus. And then when I'm taking question 1, bolte sub question K is equal to 1, K is less or is equal to 3, K plus plus. तो जो पहला दिन का स्टोरी चालू होगा यहाँ पे, ये फर्स्ट डे का, फर्स्ट डे में फर्स्ट क्वेश्चन और उसका 3 सब क्वेश्चन, मतलब चालू हो जाएगा। देखो कैसे बन रहा है। पहला दिन आई इज 1, क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1, सब क्वेश्चन 2, सब क्वेश्चन 3, राइट स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? यस सर। अब कौन सा लूप चेंज होगा? पहले के, तो के पहला क्वेश्चन का 3 सब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या चेंज होगा? आई चेंज होगा कि जे चेंज होगा? J. ये चेंज होगा, चेंज जे चेंज होगा। अब जे दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 और सब क्वेश्चन 1 2 3, मतलब 2 का 1 2 3, राइट? अब कौन चेंज Yes. होगा? अब कौन चेंज J. होगा? जे चेंज J. होगा। जे मतलब क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन नंबर 1 2 3। फिर कौन सा चेंज होगा? आई। J. 4 हो J. जाएगा। जे फिर से J. उसका 1 2 फिर से 5, फिर से इसका 1 2 3, राइट स्टूडेंट्स? अब I change होगा। यस। अब I अब बोले will आज का पेपर मेरा खत्म हो गया सर। आज मैं गया, 5 क्वेश्चन थे, पांचों में 3 सब क्वेश्चन थे, खत्म हो गया। अब बच्चा कल फिर एग्जाम देने जाएगा, तो अब ये डे 2 आ जाएगा। सेकेंड डे अगेन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? कुड यू टेल मी? सेकेंड डे में क्या I will होगा? become 2. 5 पहला I will become हाँ I become 2, J become 1, क्वेश्चन नंबर 1 and question number 1, तो K for day 2 again will become 1 2 3. अब day 2 में फिर कौन चेंज होगा? आफ्टर 1 2 3 J, day 2 का क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन 1 2 3, फिर day 2 का क्वेश्चन 3 1 2 3,
Question number 4, 1, 2, 3. Question number 5, 1, 2, 3. Right, students? सर आज का भी मेरा पेपर Yes, sir. खत्म हो गया, बट मेरा एग्जाम खत्म हुआ क्या? No. एग्जाम नहीं खत्म हुआ. अभी आई फिर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, राइट? जब आई 3 होगा तो जे फिर से, मतलब नाउ यू आर ऑन द थर्ड डे इनसाइड द एग्जाम हॉल. Third day you are inside the exam hall. What will change next? J will become 1. बोले आज K का will question. become 1. Yes, and K will start from 1, 2, 3. Is that clear? Hello? Yes, Yes. sir. Yes, sir. So actually ये सब more of visualization होता है students की. देखो अभी मैंने आपको 3 for loop का भी visualization दिखाया. 3, 2 भी बताए, 3 भी बताए. एक पर्टिकुलर डे पे एग्जाम दे रहे हो तो डबल फॉर लूप. पूरा एग्जाम को अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो आपको 3 फॉर लूप चाहिए. पूरा एग्जाम को कंट्रोल कर रहे हो तो 3 फॉर लूप चाहिए, राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस. Yes, sir. तो अभी हमारे पास जो मैंने आउटपुट दिया था, अगर वो प्रोग्राम लिखना है, जैसे कि पहला वाला था कि 1, 2, 3, 1, 4, 5 ये डिस्प्ले करना है, ऐसा स्क्रीन में ऐसा आउटपुट दिखाई देना चाहिए. तो प्रोग्राम मैंने लिखा था और उसी को कोई बोलता है कि सर आप इसको 1 लिखो, 1, 2 लिखो, 1, 2, 3 लिखो, 1, 2, 3, 4 लिखो, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा डिस्प्ले आना चाहिए. तो मतलब ये क्या हो रहा है कि आपको इधर कौन चलता है, लेफ्ट से राइट कौन चलता है? जे चलता है, राइट? जे मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. And I moves from Top to bottom. top to bottom. I is looking after the row, each row. I's row, and J talks about the column, right? Column. Column. तो जब मैं यहाँ पे जो प्रिंट कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू जो प्रिंट है, किसकी वैल्यूज है? J की, राइट? अब ध्यान दो, जब तुम्हारा 1 है तो आपने J का केवल you printed 1 value. When I was 2, you printed, that is J का 2 value. When I was 3, you printed 3 value. When I became 4, you printed 4 value. When I became 5, you printed 5 values, right? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मुझे इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अगर इसका दूसरा एक और प्रोग्राम मैं बताऊं कि कैन यू प्रिंट लाइक दिस 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5. चलो ए भी साथ में करेंगे, एक के साथ 2, 3 फ्री करते हैं. जरा राइट डाउन द प्रोग्राम, लिखते हैं कैसे लिखेंगे. अभी भी आधे बच्चों को माइंड में चढ़ा ही नहीं है सर क्या है करके, व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर. ठीक है, Yes, but sir. let me write this, then you will understand what I'm trying to do over here. New void. Now you want anything from the user? No sir, user ने मुझे बताया है कि आप मुझे क्या करके दे दो. Integer I, j and clear screen. पहला वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ. for मुझे 5 रो करना है तो I 0, 0 क्यों? 1. I is less or equal to 5, I plus plus. For ये रो वाइज करेगा, ये दूसरा फर्स्ट रो में उतना वैल्यू प्रिंट करना है. J is less or equal to 5, J plus plus. And I'm saying sir print %d comma J. प्रिंट किसको कर रहे हैं हम लोग? J को. तो J 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट करना चालू करेगा, वो खत्म हो जाएगा. Then I'm saying please printing the 5 value of J, please change your row, change your line, go to the new line and do the same thing. And I'm closing my here. So then it will take next I, and again J will start from 1 and it will do the needful. So I'm writing save as output 1. Output 1 है मेरा. हम लोग रन करके देखते हैं आउटपुट है किधर सर. आउटपुट, कैन यू सी द आउटपुट स्टूडेंट्स? Yes, sir. इज द आउटपुट इज विजिबल? Yes, sir. Yes. Yes, sir.
अब सेकेंड आउटपुट देखो, सेकेंड में मैंने बोला 1 देन 1 2, तो मैं जे को बोल रहा हूं जो आई बोलता है उतना सुनो, अपनी मनमर्जी मत करो। जे बेचारा आई की सुनेगा। आई जब 1 रहेगा तो जे विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड विल एंड अप एट 1। जे इज ऑलवेज लेस और इज इक्वल टू आई। जे बोलता है भाई मुझे कुछ नहीं आता, बोले मैं जितना बोलता हूं उतना करो आप। तो जे बोलता है, आई बोल रहा है जो मेरा वैल्यू होएगा उतना ही आपको फर्स्ट रो में प्रिंट करना है। जब मैं 1 रहूंगा तो आपको 1 प्रिंट करना है, जब मैं 2 रहूंगा तो आप 1 2 प्रिंट करना, जब मैं 3 रहूंगा तो आप 1 2 3 कर देना, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? सो लुक एट द कंडीशन वेयर आई डिड द Yes, चेंजेस। sir. फर्स्ट टाइम आई 1 रहेगा तो जे विल नॉट क्रॉस इट्स लिमिट, जे केवल आई की सुनेगा। तो आई 1 रहेगा तो जे विल स्टॉप एट 1 एंड इट विल गो टू द न्यू लाइन। व्हेन आई बिकम्स 2, जे विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम 1, बट नाउ इट विल प्रिंट 1 एंड 2 and then it will change the line. Next time I will be 3, j will start from 1 and it will go up to 3. Let us do the things whatever I'm trying to tell you right now. Can you look at the output? Yes sir. Yes, sir. क्यों ऐसा हुआ सर? क्योंकि अब j किसकी सुन रहा है? I की सुन रहा है। Yes. j is controlled by I। लेकिन आई बोलते हैं क्या भाई तू हमेशा अपना ही प्रिंट करता है, जरा मेरा भी कभी ख्याल कर, मुझे भी पब्लिक में आने दे। तो बोले ठीक है भाई क्या करना है? बोले मेरा जो नेक्स्ट दिखाया था मैंने आपको, बोले अपना वैल्यू मत प्रिंट करो, मेरा वाला करो। आई इज वन, जस्ट लुक एट द लाइन वेयर आई डिड द चेंजेस इन प्रिंट एफ। आई इज वन, जे इज वन, जे विल नॉट क्रॉस वन, बट नाउ इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग आई जे इट विल प्रिंट आई, तो वन विल बी प्रिंटेड। Next time I will be 2, J will take 1 and 2, but both the time it instead of printing 1 and 2, it will print I, that is 2 and 2. Next time I will be 3, J will be taking 1 2 3 values, but what it is going to print is I, 3 3 3, right? Students, Yes, sir. just have a Yes, look. sir. क्या देखो यहाँ पे क्या हुआ, आउटपुट देखो जरा। Can you see the output? हेलो। Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. आप थोड़ा प्रोग्राम को डायनेमिक कर देते हैं भाई, हम पाई तक ही क्यों चले? मैं यूजर को पूछ लेता हूं आपको ऐसा कितना रो चाहिए, आपको 3 रो में चाहिए, 10 रो में चाहिए, वो मैं कर लेता हूं। यूजर को मैं एक बार पूछ लेता हूं, पूछना भी जरूरी होता है, अपना मर्जी से प्रोग्राम मत लिखो, मुझे और आगे चाहिए तो आई कैन डू दैट। तो printf एंटर नंबर ऑफ रोज, मतलब ऐसा कितना लाइन चाहिए आपको, ओके? 4 लाइन में भी एंड अप करना है या 10 लाइन में एंड अप करना है, यू टेल मी। आई जो 5 लाइन हमेशा कर रहा है, आई को भी मैं कंट्रोल कर देता हूं भाई, यूजर क्या बोलता है उतना सुनो। यूजर 10 लाइन बोलेगा तो 10 करना है ऐसा। अब देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूं और मैं पूछ रहा है कितना रो, मैंने बोला 8। ओह रुको भाई, ये एंड चेंज करना पड़ेगा। कैन यू लिसन दिस? मतलब दिखाई पड़ रहा है, सुनो स्टूडेंट्स। Yes, sir. Hello. Yes, sir. I will Yes, sir. not end up at 5, I will end up at n। तो मैंने रन किया और मैंने 8 डाला। जस्ट कैन यू लुक एट द आउटपुट? Yes. Yes, sir. अब मैं इसको ही 8 की जगह में 3 कर दिया। 3 देख लो जरा क्या हो रहा है। तो ये क्या डायनेमिक प्रोग्राम हो गया, आपको कितना बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, राइट? हेलो। Yes. यस। नाउ थोड़ा और अच्छा इसको कर देते हैं और थोड़ा मस्ती कर देते हैं इसके साथ में, हमको दिखाई देना चाहिए कैसा हो रहा है प्रोग्राम। अब क्या होगा जरा देखो, रन, मैंने 9 बोला है, देखो क्या कर रहा है, कैसे जा रहा है। रो चेंज, पहले कॉलम पूरा करता है फिर रो चेंज करता है। दिखाई पड़ रहा है कुछ? Yes, sir. देख लो, पहला रो जब पूरा करके आता है असाइनमेंट, फिर दूसरा असाइनमेंट हाथ में लेता है। नहीं समझ में आया तो और थोड़ा स्लो कर दूं उसको, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा स्लो कर देता हूं, डिले बढ़ा दिया मैंने। अब मैं 9 किया, जरा देखो समझ रहा है कि नहीं?
स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. समझ रहा. समझ रहे हैं? तो यहाँ पे कितने फॉर लूप चल रहे हैं? जो टॉप से बॉटम जा रहा है वो 9. आई है। Yes, sir. 9 for loop. 9 फॉर लूप नहीं है बाबा, 2 फॉर लूप चल दो रहे हैं। फॉर लूप, 2 फॉर लूप सर. 9 फॉर लूप किधर से आ गया भाई? हाँ, क्या तुम लोग बच्चे लोग क्या कर रहे हो बाबा? 9 फॉर लूप है कि 2 फॉर लूप है? 2 सर. 2 for दो loop. है। तो व्हाट इज योर आउटर फॉर लूप? आउटर फॉर लूप इज लुकिंग आफ्टर रो और कॉलम? Row. यस सर। रो। और इनर फॉर लूप इज लुकिंग आफ्टर कॉलम्स। Column. हाँ, ठीक है। आउटर फॉर लूप इज मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इनर फॉर लूप इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इज दैट क्लियर? Yes. Yes. मतलब जो 99999 इतना बार वैल्यू रिपीट हुआ है वो जे की वजह से रिपीट हुआ है। जे ने उसको 9 बार प्रिंट किया है, राइट? हेलो? यस सर। यस। Yes. आप हमारे साथ में कोई ट्विस्ट करेंगे कि भाई सर ऐसा नहीं, मुझे ऐसा कुछ चाहिए था। कैसे चाहिए आप बताओ? मैंने बोला कि सर मुझे आप 1 2 3 4 5 मे बी 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और 1 ऐसा आउटपुट कुछ चाहिए। उल्टा ट्रायंगल करो सर। कौन सी बड़ी बात है सर, हो जाएगा। आप कर सकते हो स्टूडेंट्स? कर सकते हो उल्टा? Yes. या मे बी 5 5 5 5 देन 4 4 4 3 3 3 2 2 and then 1. Can we do this? Yes sir. How will you do this? J minus minus. देखते हैं जे माइनस माइनस करना है, क्या करना है। ओह, जे माइनस माइनस करके देखते हैं। तो जे माइनस माइनस करेंगे तो सब लफड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसने भी जे माइनस माइनस बोला है बेटा, आप देखो कॉमन सेंस चलाएंगे हम लोग। जे माइनस माइनस करेंगे तो जे बेचारा 1 है। नेक्स्ट टाइम वो आगे कुछ नहीं करेगा, जीरो की तरफ भागेगा। इस जीरो, सपोज आई उस समय 5 है, आपने जे, सपोज आप लास्ट वाला लाइन प्रिंट कर रहे हो 99999 टाइम्स, राइट स्टूडेंट्स? जे 1 है, जे 1 है और जे को माइनस माइनस कर दिया तो जीरो हो जाएगा। तो क्या वो नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करने जाएगा? क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा, राइट? हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे? देखो मैं आउटपुट 2 ले रहा हूं। आउटपुट 2 सेव एज आउटपुट 2.c। हम क्या करेंगे, जो भी आप बोलोगे सर 5 चाहिए, तो पहले मैं i को बोला 5 से स्टार्ट करूं और i को मैं रिड्यूस करते जाऊंगा कि पहले रो में जो i 5 से स्टार्ट हुआ है। अब j किसकी सुन रहा है? ध्यान देना जरा। i is 5 and then if I'll write here j, just imagine i 5 है तो j कितना वैल्यू लेने वाला है सेकेंड लूप में? हेलो? यस सर। कितना वैल्यू लेगा? 1 2 3 4 5 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ. Yes. j I is 5 is 5 is greater or equal to 1? Yes. Then j will start, that means you are starting from question number 5. So question number 5, right? So I is 5, उसमें 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा, बाद में I 4 हो जाएगा और फिर ये 1 2 3 4 करेगा, फिर I 3 होगा, फिर ये 1 2 3 करेगा, फिर I 2 होगा, ये 1 2 करेगा, फिर I 1 हो जाएगा, फिर ये 1 करेगा, बात खत्म हो जाएगा। जस्ट हैव अ लुक हियर। मैंने बोला 5, देखो क्या कर रहा है। पहले I 5 था तो J ने 1 2 3 5 वो सब किया, फिर देखो क्या हो रहा है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. यस। Yes, sir. और इसमें ही मैं J की जगह केवल I प्रिंट करूं तो I is 5 5 5 5 5 विल बी प्रिंटेड 5 टाइम्स बाय J, राइट? सिर्फ मैंने प्रिंट स्टेटमेंट को चेंज किया है। I said 5. Look at this, what it is printing now.
हेलो, यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रहे सर? Yes, सिर्फ हम लोग दो दो फॉर लूप मिला के काम कर रहे हैं। अगर मैं अब तीसरा ट्विस्ट देखता हूं और जो मुझे बता देगा प्रोग्राम, मैं समझ जाऊंगा कि उसको प्रोग्रामिंग समझता है। मैंने बोला सर मुझे ऐसा कुछ डिस्प्ले करके दो। क्वेश्चन नंबर 1, आई सेड 1 करो, फिर 2 करो, फिर 3 करो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए जो मैंने अभी दिया तुमको स्क्रीन में। एंड देन आई मे आस्क यू लाइक दिस 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। Can you display this output, students? Hello? Same thing. सब कुछ डबल फॉर लूप में करना है। हेलो, I want to check up whether there is any brains are there in this class FY BSc IT में, or there is no brains. J+1 J+1 क्या करेंगे बेटा? देखो कुछ ध्यान दो, अगर आप ध्यान दे सकते हो तो आपका माइंड चलना चाहिए कि ये I1 होगा, J1 से स्टार्ट करेगा। सेकेंड लाइन में जब J1 स्टार्ट करेगा तो ये 2 और 3 कौन प्रिंट करेगा? या 4 5 6 कौन प्रिंट करेगा? ये तो ना I का वैल्यू है ना J का वैल्यू, क्योंकि जब थर्ड लाइन में when I will be 3, J will take 1 2 3, then how I am going to get 4 5 6? Or when I will be 4, J will take 1 2 3 4, right? Then how will you get 7 8 9 10? Students, आप मेरी बात समझ रहे हो? फिफ्थ रो में जब I 5 होगा तो J बेचारा 1 2 3 4 5 लेगा, तो ये 11 12 कहां से आएगा? स्टूडेंट, आप समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूं? तो कैसे करेंगे, कोई तो बताओ। हाँ, देखते हैं कोई बच्चे का ब्रेन चलता है या नहीं चलता है। हेलो स्टूडेंट्स, यस सर किसी भी बच्चे का सिस्टम चलता ही नहीं है क्या? I++ करके देख लो। क्या प्रिंट करना है आपको? I++ करना है प्रिंट? नहीं चलेगा बेटा। अगर I++ कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि I++ 2 बार होगा। कहाँ पे होगा? एक प्रिंटफ में I++ की लिखा है और एक फॉर लूप में भी I++ है। सब प्रोग्राम ही डिस्टर्ब हो जाएगा अगर ऐसा कर दिया आपने तो। स्टूडेंट्स, यस सर क्या करना है? किसी को नहीं समझ में आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये I और J दोनों क्लोज फ्रेंड आपस में बात कर रहे थे, यार ये प्रोग्राम कैसे होगा। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मेरा वैल्यू भी प्रिंट नहीं कर सकता, I और J उसका भी वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकता है, क्योंकि जब जब I चेंज होगा J रीसेट हो जाएगा, फिर से 1 से स्टार्ट करेगा। राइट? होता है कि नहीं होता है स्टूडेंट्स? जब जब असाइनमेंट बदल Yes, जाता sir. है, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। Yes, sir. हाँ, तो ये सब कहां से आएगा? तो इन लोगों के पास एक और फ्रेंड है, I और J के पास उनका खुद का फ्रेंड है एक, वो है K। वो है K। तो जब I 1 है,
J 1 है, K भी 1 रहेगा, तो ये for I is 1, I is less or is equal to maybe 5, I plus plus, for J1, J हमेशा I की सुनेगा, J प्लस प्लस, ये दोनों अपनी वैल्यू प्रिंट नहीं करते हैं, वो लोग K1 को प्रिंट करेंगे, K को प्रिंट किया और K को आगे बढ़ाएंगे, K प्लस प्लस, K प्लस प्लस. So I is 1, J is 1, K is 1, I is 1, J is 1. तो after printing K is 1, it is moving to the new line. यहाँ पे new line move कर देंगे. But when they are moving to the new line, K has changed from 1 to 2. So then when I becomes 2, J will again become 1, but now it is going to print 2. When J becomes 2, K has become 3, right? Students? Hello? Yes, sir. हाँ, तो जब J2 होएगा तो K3 हो गया, तो जब देखो पहला 1 प्रिंट हो गया था, I is 1, J is 1, K is 1, 1 प्रिंट हो गया. Next time I becomes 2 and J will take how many values when I is 2? बोलो. अरे बाबा, when I is 2, J will take how many values? 2 values. ये जब, हाँ, जब I 2 है तो J कितना बार चलेगा? 2 बार ना? हाँ, हाँ, तो 2 बार चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा? K का 2 और K का 3, राइट? Yes, sir. जब I 3 होगा तो J कितना हो जाएगा? J कितना टाइम चलेगा? When I is 3, J will run 3 times. 3. Then, but what it is going to print? It is going to print 3, 4, 4, 5. 5, right? Is it clear? Yes, sir. Yes. चलो हम लोग चला के देखते हैं प्रोग्राम को कैसे हेलो चलेगा. सर, बोलो सर. एक और एक टाइम सर एक्सप्लेन करो ना. आप हमारे प्रोग्राम में रहो, साथ में हम देखते हैं कैसे चल रहा है. हाँ, आउटपुट ये कौन सा है? 3. आउटपुट 3.c और I is 1, ध्यान देना है, I is less or is equal to n कर रहे हैं पहली बार, 5 ही देंगे हम लोग, I प्लस प्लस, और हम प्रिंट करेंगे K, और हम ले रहे हैं K is equal to 1, K is 1, K is 1. Just have a look यहाँ पे क्या होने वाला है अब. And अब अच्छे से ध्यान दो, जिसने बोला सर एक और बार करो. I is 1, J is 1, J कितना स्टेप चलेगा? एक स्टेप चलेगा कि ज्यादा चलेगा? When I is 1, 1 step. 1 स्टेप चलेगा. तो उस टाइम में K का वैल्यू कितना है? K का वैल्यू 1 है. 1 प्रिंट करके बाहर आ जाएगा. कहां पे जाएगा? नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, राइट? हेलो. Yes, sir. लेकिन बाहर जाने से पहले K की वैल्यू कितनी करके गया है? वो 2 करके गया, राइट? It has printed K as 1. Later on it has become 2. Is that clear? Yes, sir. So Yes, sir. next time जब वो बाहर आता है तो I कितना हो जाएगा बाद में? 2. I कितना हो जाएगा? आगे पर मुझे अभी टाइम लेना. फिर जब I जब 2 होगा तो J कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 से. J कहां से स्टार्ट होगा? When I becomes 2, J becomes 1, what? 2C. अरे बाबा, I becomes 2, J becomes what? Assignment number 2, question number. 2. 2. 2. अरे assignment number 2, 1. question. 1. 1. 1. हाँ, अभी भी समझ नहीं आ रहा है. Assignment number 2, I is your assignment, J is your question number. So when I becomes 2, J becomes 1. Is 1 is less or is equal to 2? Yes, sir. So then it says print K. K में क्या छोड़ के गया था वो? 2, right? Yes, sir. तो 2 प्रिंट करेगा. Then after printing 2, what is the new value of K? After printing 2, not 3.
After printing 2, K will become 3. And J will become what? J will become 2. Is 2 is less or is equal to 2? Yes, sir. So then what is the new value of K printed? 3, right? Yes, sir. Or when J becomes 3, 3 is not less or is equal to 2, it will leave J. J से बाहर आएगा, K लेकिन 4 हो जाएगा बाद में, right? Yes, sir. Yes. तो जरा अब इसको हम रन करते हैं और आप कैलकुलेशन करना में थोड़ा डिले और बढ़ा देता हूं तो शायद तुम लोग को और अच्छा आइडिया रहे। डिले मैंने बढ़ा दिया है, मैंने 5 लाइन का बात किया है। पहला I is 1, नहीं J खा is सकता 1, मैं। K is 1, एक हो जाएगा। अब बस फिर ये जब कर रहे हैं। J खत्म हो जाएगा तो फिर I2 हो जाएगा। जब I2 हो जाएगा तो J फिर से 1 हो जाएगा, लेकिन जब K छोड़ के बाहर गया था K हैज बिकम 2। जस्ट हैव अ लुक, देखो ये 1, कुछ समझ रहा है क्या? Actually, whose values are getting printed is K का value, right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Hello, students. Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्लियर है? डाउट? अभी कुछ डाउट है किसी को यहाँ पे? सर ये कैसे हो रहा है? सिंपल बात है, पूरा काम K कर रहा है। J, I और J ये उनका वैल्यू नहीं है, जो मुझे दिखाई दे रहा है किसी और का वैल्यू है, और K उनको हेल्प कर रहा है, ये और J को, राइट? पहले जो हमने प्रोग्राम लिखे थे उसमें I और J के वैल्यू प्रिंट हो रहे थे, कभी I का कभी J का, बस और कुछ नहीं हो रहा था, राइट? Yes, हेलो, sir. मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और प्रोग्राम इसके साइड में आउटपुट दिया था 1010 वाला, उसको कैसे करोगे आप? उसको मैं आउटपुट नंबर 4 कर देता हूं। आउटपुट नंबर 4, आउटपुट नंबर 4। अब यहां पे क्या होगा, अगर हमें 5 स्टेप चलना है तो यहां पे अगर आप ध्यान दो, देखो 1 0 1 0, तो जब फर्स्ट रो, मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, पहले जहां है मेरा आउटपुट, फिर से दिखाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इज माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 and then 1 0 1 0 1 स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैं यहां पे, देखो यहां पे ध्यान देना है आपको, ये मेरा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, और यहां पे है मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, राइट? यू एंड दिस इज योर आई। ये जो इधर जा रहा है ये आई है, और जो इस तरफ जाएगा ये मेरा जे है, राइट? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. Yes, sir. Yes. आप जरा I प्लस जे ऐड करो, I प्लस जे, 1 प्लस 1 फर्स्ट पोजीशन पे, I is 1, J is 1, what is 1 plus 1? 2. 2 is what? 2 is what? Even number, odd number? Even.
तो बोले इवन जहां जहां होगा वहां 1 प्रिंट करना है और जहां ऑड आएगा वहां 0 करना है. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 3 क्या है? इवन है ऑड है, बोले 0 करो. 1 + 3 4 बोले इवन है तो बोले 1 रखो. 1 + 4 5 तो क्या करना है फिर? 1 + 5 6 बोले 1. 2 + 1 2 + 1 odd. 2 + 2 even कुछ समझ में आया क्या लॉजिक चलेगा यहाँ पे, क्या ट्रिक चलेगा? समझ रहा है कि मैं आई और जे दोनों को ऐड किया करूंगा. अगर उनका सम टोटल इज गोइंग टू बी इवन वैल्यू देन आई विल प्रिंट 1 एल्स आई प्रिंट 0. इज दैट क्लियर? प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? Yes. ये वाला सम. क्या वाला है? ये वाला मैंने बोला आप इस पे हाईलाइट करो. ये फर्स्ट टाइम यू स्टार्ट फ्रॉम रो 1 एंड कॉलम 1, राइट? what is 1 + 1? 2. Is that 2 is even number or odd number? इवन नंबर. Even. तो ये इवन नंबर आया तो ये प्लेस में आप 1 प्रिंट कर देना यहाँ पे. उसके बाद में से फर्स्ट रो ही आप कंटिन्यू करोगे लेकिन कॉलम चेंज हो जाएगा. कॉलम विल बिकम 2, राइट स्टूडेंट्स? दैट इज असाइनमेंट विल रिमेन 1, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा. व्हाट इज 1 + 2? व्हाट इज 1 + 2? 3. ये वाला 3 ऑड हो गया, इसको 0 कर दो. फिर नाउ सेम असाइनमेंट, क्वेश्चन फिर से बदल गया, 3 आ गया. व्हाट इज 1 + 3? 4 4. मतलब ये इवन प्लेस है तो वहां पे हमने 1 दिया है. आप वही 1 रखो और आगे 4 ऐड करो तो 1 + 4. 5 तो ये क्या है? ये क्या है? ऑड है तो वहां पे 0 है. फिर 1 + 5 करो. इसके लिए 1 + 5 ये वाला इवन हो गया. ऐसे अब वो फर्स्ट रो हमारा खत्म हो गया. चेंज योर रो, सेकंड रो. व्हेन आई चेंज सेकंड रो, माय फर्स्ट कॉलम अगेन, when I is 2, J will again start from 1. So 2 + 1. 2 + 1 is 3. So 3 तो ऑड है तो बोले इसको 0 रखो. फिर 2 + 2 4 even. मतलब ये इसके साथ में ये आई और जे को करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे आप ऐड करके देखो. जहां पे इवन पोजीशन आ रहा है वो 1 है, जहां पे ऑड वैल्यू आ रहा है वो 0 है. राइट स्टूडेंट्स? खुद ही ऐड करके देखो टोटल क्या हो रहा है. स्टूडेंट्स हेलो, सबको विजुलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस. तो चलो इसको अब हम करते हैं, प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, सो लेट मी गो बैक टू द प्रोग्राम देन. हम लोग प्रोग्राम करते हैं और हम लोग अब सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे. हम देख रहे हैं बाबा हमारा जो टोटल क्या है. इफ आई + जे, इफ आई + जे जो भी टोटल होगा इज द टोटल %2 इज इक्वल टू 0. यानी टोटल अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या करना है स्टूडेंट्स? हेलो स्टूडेंट, अरे बाबा 2 से डिवाइड हो रहा है तो 1 प्रिंट करना है. 1 यस सर, 1 प्रिंट करना. अगर नहीं डिवाइड हो रहा है, दो ही पॉसिबिलिटी होगा, या तो डिवाइड होगा या नहीं. हाँ, एल्स आई विल राइट हियर प्रिंट f 0.
अगर डिवाइड हो रहा है तो 1 करो, नहीं हो रहा है तो 0 करो, बस इतना ही काम करना है। क्या बात की सर, ये तो बहुत इजी प्रोग्राम आपने दिया है। आप तो हम लोग को अंडर एस्टिमेट करते हो, राइट स्टूडेंट्स? आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं सर, लेकिन वो बात दूसरी है कि हम लोग को प्रोग्रामिंग नहीं आता है, बट टैलेंट तो है हमारे पास में, लेकिन रटो 5 वाला टैलेंट है। एनालिसिस कुछ नहीं है सर, आप प्रोग्राम बाहर करने के लिए बोल दो, हम और भी प्रोग्राम कर लेंगे। सो लेट मी क्लोज दिस। कितना ओपन है? एक और क्लोजिंग करना पड़ेगा। जितना ब्रैकेट ओपन करो उतने ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ता है। I said 5 स्टूडेंट्स, मैंने डिले हटा दिया था प्रोग्राम से। दिखाई पड़ रहा है कुछ? हेलो? Yes, sir. Yes. ये 5 का है, लेकिन डायनेमिक है। ये 5 का है। लेक्चर सुनिए, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। ये 5 का है, अगर इसको मुझे 10 भी चलाना है तो भी मेरा चलेगा। 10 दिखाई पड़ा स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस, Yes, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है। वो इवन रहेगा तो 1 करेगा, नहीं तो 0 कर देगा। आप 10 नहीं, जितना भी चलाना है उतना भी चल जाएगा, राइट? ठीक है स्टूडेंट्स? Yes, sir. So students, I will wind up here, and today I will not be able to take your practicals. Okay, I will take maybe some whenever you are free next. Okay students? Okay, sir. सर Sir, अपलोड कर and दो the ना next आउटपुट that is को। at 20. अजी क्या बोल रहे हैं? कोई तो कुछ बोला। हेलो? तो चैट बॉक्स में आज का सारी प्रोग्राम्स अपलोड करो ना। चैट बॉक्स में अभी करें, याद करके रखो। अब गॉट ए लेक्चर राइट नाउ, स्टूडेंट्स आर इनवाइटिंग मी इन सम अदर मीट राइट नाउ। Okay, याद sir. करके रखो, ठीक है? मैं अब आते ही नेक्स्ट लेक्चर में पहले आप वो सब प्रोग्राम ले लो जो अभी किए मैंने। एंड टेबल फॉर लूप प्लीज अंडरस्टैंड करके रखो। असाइनमेंट नंबर, क्वेश्चन नंबर, 3 फॉर लूप है, तो मैंने आपको एग्जाम, असाइनमेंट या एग्जाम, पेपर और फिर सब क्वेश्चन, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है? यस सर। यस, रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि फॉर लूप कैसे चलता है, पहले कौन सा पूरा होता है, फिर तो पहले ऑलवेज जो इनसाइड होता है वो पहले पूरा होता है, फिर आप दूसरा क्वेश्चन लेते हो या फिर दूसरा पेपर लेते हो, फिर उसको पूरा करते हो, फिर ऐसा, राइट? पहले आपने एक काम, अगर आपको 5 काम करने हैं और हर एक वर्क के लिए यू हैव टू अप्लाई सम स्टेप्स, तो व्हेन यू टेक अप द फर्स्ट वर्क देन यू अप्लाई ऑल द स्टेप्स, देन यू टेक अप द सेकंड वर्क. You just cannot switch to the second work without completing the first work. Can you do that, students? No, No. sir. No, we cannot do this. Okay students, chalo, take care. Thank you. Thank you, Thank you, sir. Bye, sir. sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir.